CSQ Haji, please come and join us. Paya Prejavyam Paya Bodhade Upayo Divyantarche. इसी के साथ हमारे ladies and gentlemen, a big round of applause for all the dignitaries seated on the dais. And everybody, thank you so much to all the dignitaries for coming here. Thank सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। How will the government of Uttar Pradesh in this environment of investment benefit from the process of honor, Shri Sanjay Musketi ji, Shri Avnish Awasthi ji, Senior Advocate, Shri Prashant Chindra sir, Mukesh ji, former judges in the gathering, ladies and gentlemen, my colleague lawyers. Today's conference is of great significance. I have been exclusively associated with dispute resolution mechanism for the last about 3 decades. And today, after the inaugural session also, there are some tough questions which we will ask ourselves and each other. Now, what is the significance of today's conference? Our state of Uttar Pradesh is on a growth trajectory and lot of investments are coming in. I have not only travelled for my arbitration references in the country, but I have also been travelling outside the country. Everywhere, dispute resolution mechanism is an integral part of the investment scheme in any country of the world. Second area which we will be touching today, that if you look at today's topic, institutional arbitration, the only answer. It might sound a little arrogant that why the word only answer has been used. No, it's the reality for 2 reasons. One, that the scope of institutional arbitration is the order of the day, not only in India but worldwide. India, under the leadership of our present Prime Minister, has taken this has come up and why it is being said that this is the only answer is something which everybody is apparently aware of. Though nothing much has been done to eradicate the evils of arbitration which are presently there. With the institutional arbitration, what we do is that the interference of the courts is minimized. If not completely eradicated, it is minimized. And that is what is required. Expedition is another thing which you can achieve through institutional arbitration. Now, for instance, if you have to seek an appointment of an arbitrator under an ordinary contract or an agreement, and as Mr. Vedra said just now, government is primarily the main litigant in practically all these matters. You have to make an application under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act for appointment of an arbitrator. In practice, it is seen it takes almost 3 to 4 years for appointment of an arbitrator to come through from the courts. Now, the advantage of institutional arbitration is, if you have already agreed that the matter will be referred to a particular institution in case of any dispute or difference between the parties, you straight away go to the institution. Institution has its own set of rules, it has its own panel of arbitrators, and before the appointment takes place, which normally comes through within a period of 2 weeks or so, there is consensus of the parties to appoint the arbitrator. Now there are different advantages of an arbitral tribunal being appointed by consensus. Both the parties have confidence in the arbitral tribunal. They know what the arbitral tribunal will do, will be in their interest, will be a fair decision. Allottees, as well as the companies or the promoters, they compromise on certain issues and then they go ahead because nobody wants a dispute and
the home buyer definitely doesn't want a dispute. He wants to get a home, his possession and the registry. So that one advantage I'm seeing it myself when it comes to arbitration and conciliation. Next point which I have realized in my 35 years of career, and my senior colleague Avnish ji must have also realized, that the government being the biggest litigant in writ jurisdiction before all the constitutional courts, be it the high courts or the Supreme Court, it takes a lot of energy, time and public money to contest cases there. Now, if we have a very good arbitration systems in place, like this newly developed SEMA, which is now functioning since last, it started since last 2 years, but now it has picked up very well, then I am quite sure government would be the biggest beneficiary. Because in many litigations, if the matter goes into arbitration and if it is given to an institution like SEMA to appoint the arbitrators amicably, as our learned senior colleague Advocate Prashant Chandra ji had said, that then the trust of both the parties are there, the industry or the government or whoever is the contesting adversary parties, and then it becomes very easy because of trust, the respecting the award given by the arbitrator instead of again going and litigating. So that would be a very big thing to come here. We were sent, I would also say, how a good arbitration system. कि इतनी गर्मी में आप बुला रहे हैं, गर्मी टेम्परेचर की भी, बाहर धूप की भी है और पॉलिटिक्स की भी है, तो इस बीच में आप जो है यहाँ बुला रहे हैं इस तरह के मामले के लिए, तो लोग आएंगे कि नहीं? तो आई एम सो हैप्पी दैट यहाँ रिटायर्ड जजेस आए हैं, यहाँ सीनियर हमारे पत्रकार आए हैं. आई सी सम लेडीज हियर, पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स आई वुड से राइट अवे दैट सेमा के जब ये बना था, बनने वाला था, बनने की व्यवस्था बन रही थी, तब इसी मंच पर हम लोगों ने यहाँ आकर, प्रवीर कुमार साहब यहाँ बैठे हैं, आपके और सभी सहयोगियों के साथ इस कार्य को शुरू किया था. सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी टू हियर दैट सेवा हैज़ बिकम एक्टिव. और कितने 3-4 साल का बच्चा है? 2 साल का बच्चा है. तो 2 साल में 1 to walk and 2 to talk मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मैं 2 to talk आपका शुरू हो गया है. अब आगे बहुत अच्छे से जो है अपने स्कूल में पढ़ाई कराने के लिए, तीसरे साल में बच्चे आजकल पढ़ने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो आपका सेमा भी बहुत मजबूती से काम करेगा. राइट अवे आई वुड लाइक टू से दैट हैविंग बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, एंड क्योंकि हम लोग एक्सप्रेसवेज में काम कर रहे थे, हम लोग जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लोगों ने जो है उपशा, जो हमारी स्टेट रोड हाईवेज अथॉरिटी, उसमें काम किया है, और टूरिज्म के एरियाज़ में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डील किए हैं. इवन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट्स में डील किया है. हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में चूंकि डील किया है, तो निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा एरिया है, अभी बहुत कम समझा हुआ है और बहुत कम जाना हुआ है. मैं भी जज साहब, मंच पर आसीन श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार, श्री संजय भूस रेड्डी जी, चेयरमैन रेरा, श्री प्रशांत चंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मनीष मेहरोत्रा, श्री मुकेश बहादुर सिंह जी, तथा हमारे सामने बैठे हमारे अग्रज पूर्व न्यायमूर्तिगण, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.यू. खान, माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस. राखड़ा, माननीय न्यायमूर्ति श्री ओ.एन. खंडेलवाल, माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरनाथ वर्मा और माननीय न्यायमूर्ति श्री राघवेंद्र कुमार जी, और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण. और हम इस कड़ी में विशेष रेफरेंस पे नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन चूँकि हम लोग सेंटर
ऑफ एक्सीलेंस फॉर मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन के सेमिनार में आए हैं, जिसमें कि आर्बिट्रेशन से पहले मीडिएशन का नाम दिया गया है और समहाउ मुकेश जी ने एक पासिंग रेफरेंस मीडिएशन को किया हमारे पूर्व वक्ताओं में। इसके अलावा मीडिएशन का जितना ध्यान दिया गया वो एक डिपिक्टिव है कि हमारे समाज में और हमारे जुडिशियल सिस्टम में मीडिएशन को कितनी अहमियत दी जा रही है। तो हम इस त्रुटि को सिंबॉलिकली सुधारते हुए यहाँ मौजूद हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर से जुड़े हुए सीनियर मीडिएटर्स श्री यशवर्धन स्वरूप जी, श्री के.डी. नाग जी, श्री रामराज और श्री शिशिर जैन जी को भी स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे एक मैसेज समाज रिसीव करे यहाँ बैठे लोगों के थ्रू कि मीडिएशन को इस तरह से नेग्लेक्ट करके एक कोने में छोड़ देना, ये हमारे Continuously there must be effort to work to improve the working of the general justice dispensation system, particularly the courts. And I go a step further. Society must develop a temperament of urgency. In every matter some urgency must be shown. I mean, to search an ideal situation that everything would be perfect, that is almost impossible. Nothing is perfect. There is always a chance of improvement. But sense of urgency must be there, and it is all the more required in arbitration matters. Now, as far as institutional arbitration is concerned, only one step is simplified, that is appointment of the arbitrator. But thereafter the arbitration act will remain the same, whether the arbitration is before the ad hoc arbitrator or before an institution. The possibilities of seeking adjournment either directly or indirectly, they will be the same. Everything will be the same, governed by the arbitration act. So there must be a general sense of urgency. Now, as far as the government is concerned, of course in most of the arbitration cases government is the respondent. In very few cases government also files counter claim, but in most of the cases if the arbitration case is decided, something may be required to be given by the government. अभी बात हो रही थी, स्पीकर्स दायरे से बोल रहे थे, डिस्कशन आपस में हो रहा है कि हम लोग वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन रहे हैं, 3rd बनने जा रहे हैं। तो ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़ जब प्रमोट होती हैं तो ये इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो डिस्प्यूट भी पैदा होते हैं। जब एग्रीमेंट होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में डिस्प्यूट भी पैदा होते हैं। तो जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं तो नॉर्मली अभी तक क्या था, रेगुलर कोर्ट में जाते थे, एज ऑल ऑफ यू नो कि कितना टाइम लग जाता है, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद रिवीजन अपील वगैरह। उसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो काफ़ी हद तक अच्छा है और अच्छा काम भी कर रहा है। उसमें टाइम लिमिट है, 1 साल में आप डिस्पोजल कर लीजिए, 6 महीने के अंदर प्लीडिंग्स एक्सचेंज हो जानी चाहिए। लेकिन उससे भी बेहतर है मीडिएशन, कंसिलिएशन है मीडिएशन, क्योंकि जब आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो 2 राइवल पार्टीज बन के जाते हैं, तो कोई एक पार्टी जो कुछ भी कहे दूसरे को हर चीज़ में अपोज करना ही करना है। तो वो एक एडवर्सरियल सिस्टम डेवलप होता है। तो आपका कोई ऑर्डर आपके माफिक नहीं हो, उसका अपील रिवीजन चलता रहता है। कंसिलिएशन में ये है कि आपको एक कॉम्पिटेंट हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से आप आपस में बात कर सकते हैं। लिटिगेशन में जाने से पहले बहुत सी बातें कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आदमी गिव एंड टेक कर लेता है, चलो ठीक है यार, इतना क्लेम मत है, तुम इतना दे दो, निपटा लेंगे, कर लेंगे। अगर उस स्टेज पे रिजोल्यूशन हो जाता है। सर, आज सेमिनार का आपने शुरुआत हुई है, जिन जैसे मुद्दों को लेकर सुझाव देखिए, जो आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो मीडिएशन आर्बिट्रेशन पर है। चूँकि मैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चैलेंज है कि कॉन्ट्रैक्ट जो क्लॉज है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन। और देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने 2017 से लगातार इतनी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसमें पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है।
तो लेकिन इंडस्ट्री के सामने एक चैलेंज होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कई बार जो ये आर्बिट्रेशन इश्यूज होते हैं, उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उसको और ईज़ ऑफ डूइंग को सरलीकरण करने के लिए उसमें ये आर्बिट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर भी आ रहा है या कोई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है तो उसको एक और कंफर्ट मिलना चाहिए कि कहीं अगर कोई उसका डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन जब कोर्ट्स में जाता है तो वो लंबा समय लेता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। आज माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जजेस हैं यहाँ पर, सिटिंग जज भी सुभाष विद्यार्थी जी यहाँ पर चेयर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कर रहा है सेमा जो है वो इन्वेस्टर्स को और कंफर्ट देने के लिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज को इस तरीके से रखा जाए कि वो और इन्वेस्टर्स के पक्ष में जो है वो हो, तो उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने में और सुविधा होगी। उसको लेकर के ये आज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आज के सेमिनार में कोई उद्योगपति भी आए हुए हैं और कहाँ इसमें कई बड़े इंडस्ट्री जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम शुगर मिल के प्रतिनिधि हैं, तमाम केमिकल इंडस्ट्री के हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के जो बड़े यूपी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं उनके बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, ताकि ये बात जो है इंडस्ट्री चाहती है और मैं भी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम लोग ये चाहते हैं थोड़ा जो है वो इंडस्ट्री को, प्रो इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में जो है इंडस्ट्री को फेवर करना चाहिए। क्या सरकार की तरफ से कोई आया है ताकि इंडस्ट्री और नहीं, यहाँ पर ऑनरेबल सीएम साहब के एडवाइज़र यहाँ पर खुद मौजूद हैं और उन्होंने भी बहुत सारे सजेशंस ऐसे दिए हैं कि जो टेकअवेज हैं आज इस कॉन्फ्रेंस के, उसको जो है वो उचित प्लेटफॉर्म तक लेकर के जाएंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा इंडस्ट्री के लिए वो और उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।